Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter, this fundamental rights, and under this chapter, we have discussed about the importance of fundamental rights and the differences between the legal rights and the fundamental rights. Why do we need fundamental rights? आखिर इसको फंडामेंटल हम कहते क्यों हैं, है ना? We have discussed all these things and we have started the fundamental rights which are given to the people of the country, people of India, by the constitution. And in this regard we have seen that the one of the most important right is right to equality, which is guaranteed to the people through this constitution. Okay, and we have seen that our constitution provides everyone equal protection of the law, and everyone is equal before the law. Then there should not be any kind of discrimination on the basis of caste, religion, gender, race, creed, anything like that. And all the public places should be accessible to all in equal manner. And when we were discussing this, I told you that in our society the system of Varna system was prevailing before independence, and under this Varna system there was Sudras who were considered to be the lower caste in the society, and they were ill treated, they were exploited by the people belonging to the so-called upper caste of the society. So in our constitution these provisions were especially made so that this kind of discrimination should not continue. Especially we have discussed कि किस तरह से जो पानी के जो sources होते थे वहाँ पर वो एक बहुत ही major cause of conflict था between the upper caste and the lower caste people. उनको वहाँ से पानी नहीं लेने दिया जाता था जहाँ से अपर कास्ट के लोग लेते थे. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सोशल कंडीशंस हमारे प्रिवेल कर रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये काम किया कि एक्सेसिबल बना दिया हर पब्लिक प्लेस को. कहीं पर भी इसके लिए किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई किसी को कहीं भी आने जाने से रोक नहीं सकता है. And under this right to equality, the untouchability, the practice of untouchability has also been abolished through the constitution by Article 17. And we have seen that though all these provisions are there in the constitution, still these are the practices which we cannot say that they are really abolished in real life, because still we find that these practice of untouchability is still existing. Still public places are, many times it happens कि public places are not accessible to all. तो डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है. ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर दिया गया तो वो हमें मिल जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बट इफ it is mentioned in the constitution, then it give a kind of strength to the people in order to fight, in order to raise their voice against atrocities and exploitation. That is the most important thing. And moreover, we have this constitutional remedy, right to constitutional remedy, about which we will study in the that is the last right. उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. बट कहने का मतलब ये है कि जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है उसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है, या कोई भी कानून भी जब बनता है तो उसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि अब वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया. क्योंकि जो चीज़ें थ्योरी में होती हैं और जो चीज़ें प्रैक्टिकल में होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है, खासकर जब हम सोसाइटी को डिस्कस कर रहे होते हैं तो. और जैसे कि 2 examples are given in your book कि how when a person is coming to his village with his one of his एक अपने फ्रेंड के साथ जब वो अपने विलेज आ रहा होता है
तो जो गांव के पास का जो टी शॉप है, वो टी शॉप ओनर जो है वो उस इंसान को, जो भी गांव का है, उसको तो वो पहचान लेता है, और जो उसके साथ होता है उसको वो नहीं जान रहा होता है, तो उसका नाम पूछता है। और जब वो नाम पूछता है तो नाम पूछने के पीछे हमारे सोसाइटी जो है ना, इसमें नाम पूछने के पीछे मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है, किसी का नाम के साथ वो अपने सरनेम को बोलेगा, सरनेम बोलेगा तो उससे उसकी कास्ट पता चल जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा नहीं हर समय, बट आज के समय में बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं, ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें नहीं बदली, बहुत बदलाव आ चुका है, स्टिल अभी भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो जो एग्जाम्पल दिया गया उसमें यही है कि जो चाय का टी शॉप का जो ओनर है वो उसका नाम पूछता है, और जब नाम पूछता है तो नाम के साथ सरनेम आता है, और सरनेम के साथ ही उसको पता चल जाता है कि दैट पर्सन बिलोंग्स टू लोअर कास्ट कम्युनिटी। और इस कारण वो क्या करता है कि जो गांव का आदमी है उसको तो वो बढ़िया से जो ग्लास की जो प्याली होती है उसमें वो चाय देता है उसको, बट दैट पर्सन हु बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, दैट पर्सन इज गिविंग टी इन अ अर्दन कप, एक जो मिट्टी की प्याली होती है उसमें देता है, ताकि वो पिएगा, उसके बाद उसको यूज एंड थ्रो वाली चीज है ना, उसको रखना नहीं पड़ेगा, साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द मेंटालिटी। ये आज भी काम कर रहा है, आज भी ये माइंडसेट जो है वो हम बदला है, बहुत सारे लोगों का बदला है, बट पूरी की पूरी तरह से बदल चुकी है ये हम नहीं कह सकते। आज भी हम उसी माइंडसेट में जी रहे हैं कि जो लोअर कास्ट है उनको अनटचेबल मान के ही काम होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जहां पर कि टीवी न्यूज़ रीडर्स के बारे में है कि कुछ न्यूज़ रीडर्स हैं, उनमें से जो फीमेल न्यूज़ रीडर्स हैं, जो 40 प्लस की हैं, 45 प्लस की जो फीमेल न्यूज़ रीडर्स हैं, उनको क्या कहा गया कि उनको न्यूज़पेपर पढ़ने से, न्यूज़ रीडिंग का काम से रोक दिया गया, कि नाउ द फीमेल न्यूज़ रीडर्स हु आर अबव 45 years of age, they are not allowed to read newspaper on the read news on the TV screen। जो न्यूज़ रीड करने वाली न्यूज़ रीडर्स होती हैं, जो हम लोग अपने चैनल्स में टीवी में देखते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे जो न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं उनमें जो न्यूज़ पढ़ने वाली, पहले तो थोड़ा वो पहले वाला सिस्टम से दिया है, अगर दूरदर्शन के समय को हम याद करें तो उसमें न्यूज़ रीडर्स होती थी, जो कि मतलब बैठ खड़े होकर के सामने स्क्रीन पे न्यूज़ लिखा होता था जिसको कि वो पढ़ के सुनाती थी। तो उस तरह की न्यूज़ रीडर्स के लिए ये कहा गया कि जो फीमेल है उनको अगर 45 अबव हो गई हैं तो उनको अब स्क्रीन पे नहीं आना है, टीवी स्क्रीन पे नहीं आना है, न्यूज़ रीड नहीं करना है। और 45 प्लस वाले जो मेल हैं उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है। ऑब्जेक्शन वॉज ओनली फॉर द फीमेल न्यूज़ रीडर्स हु आर अबव 45 एज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फिर से हो रहा है, और वो जेंडर के बेसिस पे हो रहा है। क्यों हो रहा है जेंडर के बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन? यहाँ पर एक और अगर हम देखें तो वन मोर इशू इज देयर कि अगर जो फीमेल हैं, फीमेल न्यूज़ रीडर्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग बट दे आर कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, कि उनको उनका फिजिकल अपीयरेंस जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक मेल मेंबर के लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट एक फीमेल मेंबर के लिए क्राइटेरिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो इसमें दो इश्यूज हैं, एक तो आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, दूसरे ये जो फीमेल है उसका ये ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आज भी चल रही हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से कोई फायदा नहीं है। इट इज़ मीनिंगलेस, इट इज़ यूजलेस टू राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट दीज राइट्स। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसका इम्पोर्टेंस है, अपनी जगह है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बदलाव आया है, लेकिन आज भी हम कहेंगे ये प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में है। आज भी जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि माइंडसेट जो होता है ना, वो कानून बना के हम नहीं बदल सकते कभी भी। किसी का भी माइंडसेट कानून बना के बदलना बहुत मुश्किल होता है। सबका आप नहीं बदल सकते, कुछ लोगों का बदल जाएगा बट सबका नहीं बदलेगा। ये बदलाव अगर सही में आएगा तो कैसे आएगा? दिस विल कम ओनली थ्रू widening of the
माइंड, ब्रॉडनिंग ऑफ द माइंड. माइंड जब हमारा ब्रॉड होगा, वाइड होगा, कैसे होगा? एजुकेशन. दैट इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन think of improvement in the society. We can think of eradicating the social evils. That is the only way. खैर हमारा कंसर्न वो नहीं है यहाँ पर. हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. और जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में भी इक्वालिटी के बारे में डिस्कशन है. ठीक है. जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है ना कि प्रियम्बल में इक्वालिटी की बात की जा रही है. और उसमें दो इक्वालिटी जो है, खास करके दो इक्वालिटी की बात की गई है. दो तरह की जो इक्वालिटी है उसकी बात बहुत ज़्यादा की गई है. वो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है. फर्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ status and the second is equality of opportunity. ठीक है. तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें सबको एक बराबर रखता है ना. किसी का भी स्टेटस ऊपर नीचे नहीं है बिकॉज ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ जेंडर, बिकॉज ऑफ रिलीजन. नो वन इज above the others. all are equal, है ना. और इसी तरह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें मिली है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है कि हर सेक्शन जो है, ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज. किसी को भी ये नहीं कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी दी गई है. लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैटर है वो ये है कि एक ऐसी सोसाइटी में आपने सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया, एक ऐसी सोसाइटी में आपने सबको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दिया जिस सोसाइटी में इक्वालिटी शुरू से रही ही नहीं है. जो सोसाइटी इनइक्वालिटी पर बेस्ड था, जो इनइक्वालिटी पर बेस्ड सोसाइटी था, उसी तरह से उस सोसाइटी का ग्रोथ हुआ. और ये जो ग्रोथ हुआ इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अनइक्वल स्टेटस हो गया. जो सो कॉल्ड अपर कास्ट थे वो काफी आगे बढ़ गए और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट थे वो बहुत नीचे रह गए बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी. अब आज अगर हम देखें तो अपर कास्ट जो है वो अगर यहां पर है तो लोअर कास्ट यहां पर है. ये स्टेटस का डिफरेंस है क्योंकि इनको पढ़ने नहीं दिया गया, स्कूल में नहीं एंटर करने दिया गया, पब्लिक प्लेस में नहीं जाने दिया गया, गांव में नहीं घुसने दिया गया और ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे. तो इनइक्वालिटी तो नेचुरल आ ही जाएगी ना. अब आकर के आप दोनों को इक्वल स्टेटस दे रहे हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो ऑब्वियसली इक्वल में भी ये हमेशा आगे जाएगा, ये पीछे ही रह जाएगा. कभी भी ये इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल for the lower caste to become equal only by this equality of opportunity. ये गैप जो है ना, ये जो गैप है, ये गैप हमेशा बना रह जाएगा. और यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये पावर दिया कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऐसे स्पेशल स्कीम्स ला सकती है, ऐसे स्पेशल मेजर्स ला सकती है जिससे कि जो सोसाइटी के जो हमारे पिछड़े हुए जो सेक्शंस हैं उनको आगे लाया जा सके, जिसमें कि हमारे लोअर कास्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सेक्शन है जो कि काफी पीछे रह गया है. इसी तरह के वुमेन भी हैं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हुआ है, आज भी हो रहा है, बट पीछे तो बहुत ज्यादा हुआ है. तो बिकॉज ऑफ दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिस द ग्रुप ऑफ वुमेन they are also lagging behind. चाइल्ड अब्यूज भी होता है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार देता है कि वो कुछ भी ऐसे मेजर्स, कुछ भी ऐसे स्कीम्स ला सकती है ताकि जो ये पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनको आगे लाया जा सके. ठीक है. और इसी वजह से
आज के समय में हम क्या देखते हैं कि रिजर्वेशन की जो चीज़ है, आज के समय की नहीं है, मतलब ये तो काफ़ी पुरानी चीज़ है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तभी से ये रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट किया गया। और ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसके पीछे उस दिन आई हैव स्टार्टेड दैट डिस्कशन, ये किस तरह से आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 लाया गया है। और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens, which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state. ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। और ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इसीलिए लाया गया है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन और जेंडर और रेस और क्रीड और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब एक तरफ तो आपने कह दिया कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है, आपने सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी दे दी, आपने सबको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी दे दिया, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी प्रेजेंट है सोसाइटी में इसका क्या होगा, इसको कैसे, ये गैप कैसे फिल होगी? इस गैप को फिल करने के लिए ही ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर इस गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई एक जो बैकवर्ड क्लास है उसके जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वो स्टेट मतलब कहने का कि गवर्नमेंट की जॉब्स में उनको जगह नहीं मिल पा रही है, वो compete नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह के जो लोग हैं जो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनके लिए जो स्टेट है वो रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकती है ताकि उनका अपॉइंटमेंट हो सके सरकारी जॉब्स में। ठीक है, तो यही रिजर्वेशन की पॉलिसी का जो ओरिजिन है वो यहीं से होता है कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास और कास्ट। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होगा, गवर्नमेंट विल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बट दैट डिस्क्रिमिनेशन विल बी फॉर अ पॉजिटिव रीजन। किसी के अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि ये डिस्क्रिमिनेशन किसी को ऊपर उठाने के लिए है, किसी को नीचे गिराने के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन पहले होता था, जिसको हम कह रहे हैं कि शूद्रास के साथ इल ट्रीटमेंट होता था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता था, दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज नेगेटिव इन नेचर बिकॉज दैट वाज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, अ पर्टिकुलर कास्ट, है ना। एक कास्ट को नीचा गिरा रहा था, खत्म कर रहा था, उसको बर्बाद कर रहा था, तो उसका नेचर क्या था, वो निगेटिव था। बट आज जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं रिजर्वेशन की पॉलिसी जो अपनाई गई है, जो कि कास्ट पे ही बेस्ड है, दैट डिस्क्रिमिनेशन इज पॉजिटिव इन नेचर बिकॉज इट इज नॉट अगेंस्ट एनीवन, इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लोअर कास्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इसलिए इसको जो नाम दिया जाता है ना वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन द सेकेंड बुक, जो हमारा दूसरा बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें जहां पर हमने राइट्स के अंदर, इक्वालिटी के अंदर हमने इन सबको डील किया है ना। तो इसी को हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, इसी को हम अफर्मेटिव एक्शन भी कहते हैं। अफर्मेटिव, पॉजिटिव बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिनोनिम्स, है ना। तो अफर्मेटिव एक्शन मीन्स वो एक्ट, वो काम जो कि हम लोगों के किसी के लिए करते हैं, किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया है। ठीक है, और रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में ही नहीं, बल्कि जो जैसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें एडमिशन में भी इस तरह के रिजर्वेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें कि क्या किया जाता है, जो कट ऑफ होते हैं ना एडमिशन के लिए, वो
अलग अलग निकलते हैं। जैसे जनरल कोटा के लिए अलग होता है, एससी के लिए अलग होता है, एसटी के लिए अलग होता है। अब एक और रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया है, ओबीसी, है ना। अब तो नहीं, बहुत साल हो गए, 30 ईयर्स हो गए। ओबीसी के लिए भी एक स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से जो हमारे सोसाइटी के पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये पॉलिसी अपनाई गई है। और ऐसा माना गया है कि ये जिस गैप की हम बात कर रहे हैं, ये गैप को फिल करने में इसको कैसे भरा जाए, यही अफर्मेटिव एक्शन जो है वो इसलिए लिया गया है ताकि उस गैप को फिल किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी, ये हमारा एंड होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो है राइट है, दैट इज राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब इक्वालिटी हमने डिस्कस कर लिया और अब हम फ्रीडम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यू मस्ट रिमेंबर दैट बोथ इक्वालिटी एंड फ्रीडम, they both are very much important for democracy. There cannot be democracy in the absence of freedom as well as equality, and there cannot be equality in the absence of freedom. There cannot be freedom in the absence of equality. ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। हम बिना समानता के स्वतंत्रता की बात नहीं सोच सकते हैं और बिना स्वतंत्रता की समानता की बात नहीं सोच सकते। इक्वालिटी एंड लिबर्टी एक्चुअली दे आर एक ही कॉइन की, जिसको हम कहेंगे कि दो पहलू हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लिबर्टी और इक्वालिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब भी हम कहेंगे कि सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, क्या हुआ? सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, यानी कि वी आर टॉकिंग ऑफ इक्वालिटी ऑल्सो, है कि नहीं? अगर हम सिर्फ कहेंगे कि लिबर्टी हमें मिलना चाहिए तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अ पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे ही हम कहेंगे कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए तो हम उसमें अपने आप समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप आ जाता है। दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि दे बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड, एक दूसरे से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे लिबर्टी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट्स आते हैं वो है फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक है, और कभी भी फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? विदाउट एनी लिमिटेशन। फ्रीडम का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि फ्रीडम हमें एब्सोल्यूट मिल जाए, मतलब विदाउट एनी लिमिटेशन। फ्रीडम हमें जब भी मिलता है तो उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर होते हैं, बिकॉज इफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर देन ओनली ऑल द पीपल will be able to enjoy that freedom. If restrictions are not there, then all the people will not be able to enjoy that freedom. ठीक है, तो फ्रीडम के साथ एब्सोल्यूट फ्रीडम कभी नहीं होता है, बल्कि फ्रीडम हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होता है। और जब ये रिस्ट्रिक्टेड होता है तभी उसको हर कोई एंजॉय करता है। अगर ये एब्सोल्यूट हो जाएगा तो फिर जो भी इन्फ्लुएंशियल हैं economically, politically, socially, only those people will be able to enjoy that freedom. That freedom will not be for everyone. Absolute freedom is only for some people. Restricted freedom can only be enjoyed by all the people. ठीक है, तो फ्रीडम जो है वो ये होना चाहिए कि हर पर्सन, हर कोई, हर इंसान उसको एंजॉय करे, है ना, जिसमें किसी भी तरह का डर ना हो, किसी तरह का उसके अंदर ये दूसरे से डर के कारण वो अपने फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो वो फ्रीडम नहीं है ना। फ्रीडम का मतलब यही है कि एवरी पर्सन शुड एंजॉय हिज और हर फ्रीडम
without any kind of fear. And everyone should enjoy his or her freedom without threatening the freedom of others. अगर हम अपने फ्रीडम को इस तरह से एंजॉय करें कि दूसरे की फ्रीडम उससे थ्रेटन हो जाए, तो फिर हमारा फ्रीडम बेकार है ना। हमारा फ्रीडम, हमें ऐसे हम अपने फ्रीडम को यूज करना है, एंजॉय करना है कि दूसरे किसी की फ्रीडम को उससे नुकसान ना पहुंचे, है ना। और हमें अपनी फ्रीडम को ऐसे एंजॉय करना है कि लॉ एंड ऑर्डर की भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब हम इतना फ्रीडम एकदम हो जाए कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही खराब हो जाए कंट्री में, तो फिर वो फ्रीडम भी बेकार हो जाएगी, है ना। तो फ्रीडम के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं। फ्रीडम का मतलब हमेशा इक्वालिटी के साथ होता है, और जब भी हम फ्रीडम को सबके लिए कहेंगे तो वो रिस्ट्रिक्टेड ही होता है, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया है वो कौन कौन से फ्रीडम है, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट फ्रीडम हम कहेंगे वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत सारे फ्रीडम हमें मिले हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बोलने की आज़ादी देता है, अपने, ये सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं है, इट इज फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, वॉट एवर वी आर थिंकिंग वी कैन एक्सप्रेस इट, through any painting, through any dance form, through any a movie, through any serial, through any book। किसी भी तरह से एक्सप्रेशन का जो तरीका है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि हम, हमारा जो भी विचार है, हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है। इसी के अंदर बहुत सारी जैसे मूवीज बनते हैं, बुक्स लिखे जाते हैं, डांस के डिफरेंट फॉर्म्स में हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, ड्राइंग्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस पर मतलब रोक तो है, ऐसी बात हम नहीं कह सकते कि इस पर कोई रोक नहीं है, बिकॉज अगर हमें एकदम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम किसी को भी डिसरिस्पेक्टफुल बात करें, किसी को अब्यूज करें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, कोई इमोरल एक्ट करें बिकॉज आई हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत होगा। तो वो राइट हमें नहीं है। ये राइट जो हमें मिला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, है ना। और ये जरूरी भी है। अगर हर किसी को एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल जाएगा, फ्रीडम कि हम कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, तब तो फिर सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो जो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, इस पे बहुत सारे बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी कर्टेल्ड। फिर मोरालिटी के लिए कि भाई सोसाइटी में मोरालिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब तो नहीं हो रहा है कि आप कुछ भी इमोरल तरीके से, इमोरल चीज़ों को आप प्रमोट करिए। तो अगर वैसा हो रहा है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसी में हम लोगों ने अगर सेकेंड बुक वाली चीज़ें आपको थोड़ा भी याद होगा तो हमने ये सारा कुछ किया है फ्रीडम में, कि कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है और किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट तो किसी भी समय किसी भी बात पे वो कह सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे राइट को वो कर्टेल कर देगी। तो क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें अवेयर होना होगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं। रिस्ट्रिक्शंस लगना कभी बुरा नहीं होता है, बट ज़रूरत क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रीजनेबल होने चाहिए। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाए जा रहे हैं और people are not protesting against such unreasonable restrictions, then democracy will be in danger. Democracy will be under the threat. तो अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा जो हम कहेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
इज ऑन द कॉमन पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा हमारे राइट को कर्टेल करना चाहेगी। क्यों गवर्नमेंट हमें राइट देना चाहेगी? गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू कर्टेल द राइट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट that we the common people should be aware of the intentions of the government. There should not be any kind of unreasonable restrictions. अगर unreasonable restrictions लग रहे हैं तो उसका विरोध होना चाहिए, ठीक है। तो और ये हमेशा कंट्रोवर्सी रहता है। इट्स नॉट इतना इजी नहीं होता है ना कि किसी भी रिस्ट्रिक्शंस को कोई कह दे कि वो अनरीजनेबल है, कोई कह दे रीजनेबल है। मतलब ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। जब भी रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो एक ग्रुप हमेशा उसके अगेंस्ट होता है, एक ग्रुप हमेशा उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो इट्स नॉट इजी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रीजनेबल एंड अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये चीज़ें काफ़ी हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बिकॉज हमारा तो यही मुद्दा ही है ना, यही चीज़ें ही हैं जिसमें कि हमको यही डिस्कस ही करना है, यही देखना ही है कि जो भी सरकार कर रही है वो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन in the next class.